Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the lecture number 15, week 8 in system and network administration, Linux based. In today's lecture, we will discuss about the concept of pipe in Linux operating system. So let's start from the recap of our previous week lectures. In previous lecture, we were discussed about how you people can change the permissions of your file and directory. In file and directory, you people कैसे अपनी permissions को change कर सकते हैं फाइल के ऊपर और डायरेक्टरी के ऊपर. Then you people have two different modes, absolute mode and symbolic mode. By using absolute mode and by using symbolic mode, we can change the permissions of file and directory. In absolute mode, you people use the concept of octal numbers that start from 0 to 7. 0 to 7 नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेकर 7 तक. इनको हम ऑक्टल नंबर्स भी बोलते हैं. इन ऑक्टल नंबर्स को यूज करते हुए हमने परमिशंस को चेंज किया बाय यूजिंग chmod कमांड. chmod की कमांड को यूज करते हुए हमने ऑक्टल नंबर्स को यूज किया यहाँ पे. फॉर एग्जांपल 5 6 7 एंड द नेम ऑफ फाइल. जिस फाइल की परमिशंस को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका जो सिंटैक्स था chmod octal numbers and the name of file, तो इस फाइल की परमिशंस अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स आपकी चेंज हो जाएंगी. Then we discussed and one another mod, that is symbolic mod. Symbolic mod के अंदर हम किसी स्पेसिफिक यूजर की परमिशंस को अगर चेंज करना चाहते हैं, if you want to change permissions to a specific user, as you people know, we have three different user, that is called user, group user and other user. And as you know, every user have three permissions: read, write and execute. ये सबके पास है रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की परमिशंस. तो सिंबॉलिक मोड के अंदर हम थ्री डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हैं, प्लस, माइनस एंड इक्वल. आपके इन ऑनर्स के सिंबल्स को यूज करते हुए आप किसी स्पेसिफिक यूजर, जस्ट यूजर की परमिशंस को चेंज करना चाहते हैं, उसमें कोई परमिशंस को ऐड करना चाहते हैं, या आप किसी परमिशन को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं परमिशंस. फॉर एग्जांपल किसी यूजर के पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हैं और आप चाहते हैं कि उसमें से एग्जीक्यूशन की परमिशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए. दैट यूजर ओनली कैन रीड और राइट अ फाइल, but he or she cannot execute a file. Then you have to subtract execution permission from that user. And if you want to assign more than one permission, then you have to use a symbol equal. Equal का operator use करते हुए आप more than one permissions को override कर सकते हैं किसी भी यूजर के साथ. तो इस सिंबॉलिक मोड के अंदर भी हमारे पास जो सिंटैक्स था कमांड का chmod का सिंबल वर्ड हम यूज करेंगे चेंज परमिशन को चेंज करने के लिए. फिर हम किसी स्पेसिफिक यूजर की परमिशन को चेंज करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप ग्रुप यूजर की परमिशन को चेंज करना चाहते हैं और ग्रुप यूजर के पास पहले एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं थी, तो आप लिखेंगे G+X एंड द नेम ऑफ फाइल. आप उस फाइल की परमिशन, फाइल का नाम रख देंगे जिस फाइल की परमिशन को आप चेंज करने जा रहे हैं. तो ये chmod G+X की कमांड जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इस फाइल के ऊपर आपके ग्रुप यूजर को एग्जीक्यूशन की परमिशन जो है वो असाइन हो जाएगी. एंड वन अनदर लेक्चर वी
also discuss one another concept about the redirection. What is redirection? If we want to redirect data from one place to another place, if you want to store the output of your file, for example, you people use a command, as you know, cat, through cat command you people can create a file, and in that file you have contents, different contents, and if you want to move that contents from one file to another file, then you people can use the concept of रिडायरेक्शन को concept को यूज करते हुए हम अपनी करंट पोजीशंस के ऊपर जो आउटपुट है, उस करंट पोजीशन के आउटपुट को हम किसी और प्लेस के ऊपर, किसी और फाइल के अंदर उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, किसी और सेकंड प्लेस के ऊपर उसको स्टोर कर सकते हैं. In today's class, we are going to discuss about the concept of pipe, and how you people can use different commands by using the pipe, and how to use a filter in Linux operating system. And at the end, we will discuss about the concept of grep commands. Uh, the assignment number 2. In this assignment, you people write all the commands till today's lecture. आज के लेक्चर तक हमने जितनी भी कमांड्स जो हैं वो मल्टीपल कमांड्स जो हैं वो अराउंड 30 to 40 कमांड्स हम डिस्कस कर चुके हैं. उन कमांड्स को आप हैंड रिटन असाइनमेंट के साथ सबमिट करेंगे, और आप उस असाइनमेंट के अंदर जो आपकी हैंड रिटन असाइनमेंट होगी उसकी आप पिक्चर्स लेके वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आप उसको पेस्ट करेंगे, और वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो सॉफ्ट कॉपी के साथ आप अपनी ये असाइनमेंट जो है वो गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट कर देंगे. आप इस असाइनमेंट के अंदर क्या करेंगे, क्या आपके फॉर एग्जांपल एक कमांड है ls, तो नेम ऑफ कमांड, आपकी कमांड का नेम क्या है, इस कमांड का पर्पस क्या है, purpose of this command and result of this command. इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हर कमांड के बारे में आप अपनी इस हैंड रिटन असाइनमेंट के अंदर लिखेंगे, और वो हैंड रिटन असाइनमेंट आप GCR के पास सबमिट करेंगे. आपकी ड्यू डेट जो है वो 22 जून 2020. आप इससे पहले अपनी असाइनमेंट को GCR के ऊपर सबमिट करेंगे. So, dear students, what is pipe in Linux? The pipe is a command in Linux that is used for two or more commands. That is used for two or more commands. What's mean two or more commands? Dear students, आज तक हमने जितनी भी commands को स्टडी किया तो सिंगल कमांड को हम स्टडी कर रहे थे, और उस कमांड का पर्पस और उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी आउटपुट को डिस्कस कर रहे थे. For example, you want to view how many files and folders in your current directory. आप एक कमांड लिखते हैं ls, तो ये सिंगल कमांड है. इस सिंगल कमांड की को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास जितने भी नंबर ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होंगे वो आपको व्यू हो जाएंगे. इस तरह आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना चाहते हैं तो आप सिंगल कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं pwd के साथ, और आप लिस्ट करना चाहते हैं फाइल और फोल्डर, और उसके अंदर जितने भी हिडन फाइल्स और सब डायरेक्टरीज हैं, तो आप एक कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं. तो हमने सिंगल कमांड्स को डिस्कस किया. अब आप जो है वो एक से ज़्यादा कमांड को यूज़ करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एट अ टाइम, तो आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो आप बाय यूजिंग पाइप, पाइप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप मोर देन 2 कमांड्स को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, such that output of one command serves as input to the next command. इसमें होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये होगा कि आप मोर देन 2 कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो आप उसको
नंबर एक ही लाइन के अंदर लिखेंगे, उसका सिंटैक्स आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो कमांड 1 की जो आउटपुट होगी वो कमांड 2 की इनपुट कंसीडर होगी। और इसी तरह अगर आपने उसी लाइन के अंदर एक थर्ड कमांड को यूज किया हुआ है तो थर्ड कमांड के लिए आपकी सेकंड कमांड की जो आउटपुट होगी वो थर्ड कमांड के लिए एज अ इनपुट कंसीडर होगी। In short, the output of each process directly as the input to the next one, like a pipeline. जैसे ये पाइप का सिंबल है, एक वर्टिकल लाइन को यूज करते हुए आप अपने पाइप को डोनेट करते हैं। तो पाइप हेल्प यू मैश अप टू और मोर कमांड्स एट अ सेम टाइम एंड रन देम कंसेक्टिवली। आप सेम टाइम पे दो या दो से ज्यादा कमांड्स को कंसेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। The use of cat command to view a file which spans multiple pages. The prompt quickly jumps to the last page of the file and you do not see the content in the middle. जैसे आप लोगों को पता है कि थ्रू कैट कमांड हम कैट कमांड को यूज करते हुए किस कोई एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ये ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, उस फाइल का कोई नाम स्पेसिफिक रखेंगे, वो उसको कोई नाम यहाँ पे देखते हैं तो इस नेम से आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ लाइंस के अंदर आप कंटेंट्स जो हैं वो उसके अंदर राइट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइल है वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर कंसिस्ट करती है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस जो हैं वो आपने राइट अप कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल 3 to 4 पेजेस की ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी। तो जब आप इस फाइल के कंटेंट्स को व्यू करना चाहते हैं तो आप कमांड लिखते हैं cat एंड द नेम ऑफ फाइल, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कोई सिंबल नहीं यूज करते, तो इस फाइल के अंदर जितने भी आपके कंटेंट्स हैं वो सब के सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। और आपका कर्सर जो है वो लास्ट लाइन के ऊपर जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आपके जो कंटेंट्स हैं वो 2 to 3 पेजेस के कंटेंट्स हैं, ठीक है जी। तो आपकी ये जो लास्ट लाइन है वो थर्ड पेज की लास्ट लाइन होगी। तो यहाँ पे आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा। तो प्रीवियस पेज 1 के ऊपर क्या कंटेंट्स हैं, पेज 2 के ऊपर क्या कंटेंट्स हैं, आप उनको व्यू नहीं कर पाते। तो व्हाट शुड यू डू टू सी द मिडल और प्रीवियस पेज कंटेंट्स? आप अपने प्रीवियस पेज के कंटेंट्स को व्यू करना चाहते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस पेजेस के कंटेंट्स को देखने के लिए हमारे पास एक कमांड है, एक सिंटैक्स है, उसको देखते हैं। टू अवॉइड दिस यू कैन पाइप द आउटपुट ऑफ द कैट कमांड, पाइप output of the cat command to less, which will show you only one scroll length of the content at a time. तो आपका आप जब ये उस कमांड का सिंटैक्स है cat नेम ऑफ फाइल सिंबल ऑफ पाइप एंड लेस। जब आप लेस के वर्ड के साथ पाइप करेंगे अपनी कमांड को तो आपका एक स्क्रोल वन स्क्रोल लेंथ का पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आगे इसकी एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। बाय यूजिंग दिस कमांड यू कैन स्क्रॉल पेज अप एंड डाउन। तो आपका जो स्क्रॉल है, जैसे आपके पास है वर्ड डॉक्यूमेंट आप ओपन करें तो आप फोर्थ पेज के ऊपर आते हैं तो आपका स्क्रॉल जो है वो बॉटम पे छोटा सा स्क्रॉल जो है वो आपको शो हो रहा होता है राइट साइड के ऊपर। वो जो छोटा सा स्क्रॉल आपके राइट साइड के बॉटम के ऊपर शो हो रहा था वो इस कमांड के जरिए वो स्क्रॉल की जो लेंथ हो जाएगी वो वन स्क्रॉल लेंथ वन पेज के ऊपर आपका आ जाएगा। तो पेज 1 का एक स्क्रॉल होगा, पेज 2 का सेकंड स्क्रॉल होगा, पेज 3 का थर्ड स्क्रॉल होगा। तो बाय यूजिंग दिस कमांड यू कैन व्यू योर प्रीवियस कंटेंट्स और नेक्स्ट कंटेंट्स। आप अपने पेज को अप कर सकते हैं, आप अपने पेज को डाउन कर सकते हैं।
Once you reach end of the file, press Q to exit. आप ये जब कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो लास्ट लाइन के ऊपर जब जाएंगे तो दोबारा कमांड्स लाइन के अंदर आने के लिए, दोबारा कमांड नई कमांड को इंसर्ट करने के लिए आप Q का कीवर्ड जो है वो प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप अपनी कमांड्स के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे. Here you can see I write a command ls-r. मैंने ls-r की कमांड को एग्जीक्यूट किया तो आपको पता है कि वो आपकी कमांड जो है वो जितनी भी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज होती हैं वो सब का डाटा जो है वो डिस्प्ले कर जाता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका स्क्रॉल जो है वो बॉटम पे शो हो रहा है और यहाँ पे आपका एम्प्टी स्पेस है, मीन्स कि पेज 1 के कंटेंट्स आपको यहाँ पे व्यू नहीं हो रहे, सेकंड पेज के कंटेंट्स आप व्यू कर रहे हैं. आपको नहीं पता कि पेज 1 के ऊपर कौन सी फाइल्स और कौन सी डायरेक्टरीज हैं और उन डायरेक्टरीज के अंदर या फाइल्स के अंदर क्या कंटेंट्स हैं जिनको आप सब कंटेंट्स कह सकते हैं या सब डायरेक्टरीज कह सकते हैं. ठीक है, तो इन कंटेंट्स को, प्रीवियस पेज के कंटेंट्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, आप एक कमांड यूज करेंगे कैट के साथ. फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल क्रिएट की कैट काली लिनक्स के अंदर और उस फाइल के अंदर मैंने कुछ कंटेंट्स जो है वो राइट कर दिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई होप यू एंजॉयिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, स्टे होम स्टे सेफ. टाइम को बचाने के लिए मैंने काउंटिंग जो है वो मल्टीपल लाइंस जो है वो क्रिएट करने के लिए मैंने काउंटिंग लिख दी है. यहाँ पे कुछ कंटेंट्स को मैंने ऐड किया और कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है. सेकंड पेज के ऊपर चला गया, आपके वो नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो 48C. आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू का कंटेंट आपके पास. ठीक है जी, आई होप यू एंजॉयिंग द ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, स्टे होम स्टे सेफ. आपका ये स्क्रोल की जो लेंथ है वो कंप्लीट होगी. जैसे ही मैंने कैट फाइल नेम पाइप और लेस का कीवर्ड जो है ये कमांड्स को एग्जीक्यूट किया तो मेरे स्क्रोल की लेंथ जो है वो फुल 1 स्क्रोल लेंथ आ गया और मुझे प्रीवियस जो स्टार्ट की वेरी फर्स्ट लाइन के ऊपर मेरा स्क्रोल जो है वो आ गया. फर्स्ट लाइन के ऊपर आपका जो डाटा है वो ये था. इस तरह मैं स्क्रोल को डाउन करूंगा तो सेकंड पेज के कंटेंट्स मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे और थर्ड पेज के कंटेंट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे. So some more commands to view the content of files. जैसे आप एक वन स्क्रोल लेंथ को करना चाहते हैं, आप स्क्रोल की जो लेंथ है वो वन स्क्रोल करना चाहते हैं, एक पेज के ऊपर एक स्क्रोल आ जाए तो हम लेस की कमांड को यूज़ करते हैं. इस तरह हमारे पास इंस्टेड ऑफ लेस यू कैन यूज़ pg cat file name pg and cat file name more. Instead of less you can use pg and more. आप इसको यूज़ करते हुए अपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं. What is grep command? Suppose you want to search a particular information from a text file. How you did in Windows and how in Linux. Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट को सर्च करने के लिए क्या करते हैं, जरा सोचें. आपके पास एक फाइल है, वो आप कोई बुक जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक जो है वो स्टडी कर रहे हैं. उस बुक के अंदर कोई स्पेसिफिक कंटेंट्स को आप सर्च करना चाहते हैं तो then what will you do for that content in Windows operating system? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी स्पेसिफिक कंटेंट को सर्च करने के लिए आप कंट्रोल F की की को प्रेस करते हैं, वो आपकी उस फाइल, जिस फाइल को आपने ओपन किया हुआ है उसके राइट अबव कॉर्नर के ऊपर या लेफ्ट साइड के ऊपर एक सर्च बॉक्स जो है वो बन जाता है. एक सर्च बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाता है
उस सर्च बॉक्स के अंदर आप अपनी पर्टिकुलर कंटेंट्स या इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन को आप उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना चाहते हैं कि क्या वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आप कंट्रोल F की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, आपके पास सर्च बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। उस सर्च बॉक्स के अंदर वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को आप राइट करते हैं, तो आपका वो पूरे फाइल को वो सर्च करता है, और जहां जहां पे आपका वो स्पेसिफिक कंटेंट्स अगर मोर देन वन टाइम यूज हुआ है तो वो येलो कलर में हाईलाइट हो जाता है। और यही काम अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रू कमांड्स करना चाहते हैं, देन हाउ यू कैन डू, आप कैसे सर्च कर सकते हैं। Or you scan the contents yourself to trace the information. A better option is to use the grep command. या तो आप उस पूरे कंटेंट डॉक्यूमेंट को स्टडी करें योरसेल्फ उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस करने के लिए, या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के की तरह आप अपने कंटेंट्स को सर्च कर लें बाय यूजिंग grep कमांड। grep की कमांड को यूज करते हुए आप अपने स्पेसिफिक कंटेंट्स को सर्च कर सकते हैं बाय यूजिंग grep कमांड। It will can scan the document for the desired information and present the result in format you want। जिस फॉर्मेट में आप उसको देखना चाहते हैं उस फॉर्मेट के अंदर आपका जो वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। टू सर्च कंटेंट फ्रॉम अ फाइल यूज अ grep कमांड। सिंटैक्स आपका होगा जी कैट का कीवर्ड आप यूज करेंगे, नेम ऑफ फाइल जिस फाइल में आप वो कंटेंट स्पेसिफिक कंटेंट्स को व्यू करना चाहते हैं वो फाइल का नाम आप लिखेंगे, आप पाइप का सिंबल यूज करेंगे और ग्रेप का कीवर्ड को यूज करते हुए वो कंटेंट्स लिखेंगे जिन कंटेंट्स को आप फाइंड करना चाहते हैं स्पेसिफिक फाइल के अंदर। इस स्पेसिफिक फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन वो कंटेंट्स यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग grep कीवर्ड। grep का कीवर्ड यूज करते हुए आप क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कमांड्स जो हैं वो एट अ टाइम यूज हो रही। कैट फाइल नेम अगर हम जस्ट लिखते तो कैट फाइल नेम क्या कर रहा है, कैट फाइल नेम उसने इस फाइल को स्टडी किया, उसके नंबर ऑफ कंटेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर देना था जो उसके कंटेंट्स है। जबकि हमने मोर देन वन कमांड्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे बेटा, बल्कि आपकी ये जो आउटपुट होगी, ये वाली जो आउटपुट आई है, ये आउटपुट इस पाइप की वजह से grep कमांड आप सेकंड कमांड यूज कर रहे हैं, ये कमांड आपकी वन कमांड है फर्स्ट है, ये सेकंड कमांड है, ठीक है। तो इस सेकंड कमांड की ये जो आउटपुट होगी आपकी वो इसकी इनपुट बन जाएगी, ठीक है जी। तो इनपुट की हमने एक क्यूरी, और grep क्या करता है वो फाइंड करता है आपकी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। तो जितनी भी आपकी ये इंफॉर्मेशन है इन सारी आउटपुट में से वो डिजायर्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको व्यू हो जाएगी। तो आप इसी तरह जो है वो उसको व्यू कर सकते हैं अपनी किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को किसी भी फाइल के अंदर आप उसको व्यू करना चाहते हैं तो। बाय यूजिंग दिस कमांड यू कैन सर्च स्पेसिफिक कंटेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड फाइल। उस सिलेक्टेड फाइल से आप अपने स्पेसिफिक कंटेंट्स को कर सकते हैं। ट्राई विद दिस कमांड, हम इस कमांड के साथ इसको ट्राई करते हैं जी। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर कहा है कि आप किस फॉर्मेट में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। -v ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी, इसका क्या फंक्शन है -v का, इट शोज ऑल द लाइंस दैट डू नॉट मैच द सर्च स्ट्रिंग। आपकी जो सर्च स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के साथ जो कंटेंट्स मैच नहीं करेंगे वो कंटेंट्स बाय यूजिंग -v हो जाएंगे।
and if you want to display only the count of the matching line, कितनी lines आपके उस specific contents के साथ मैच की हैं, वो काउंट आप देखना चाहते हैं, तो आप -c का कीवर्ड यूज करेंगे जी। एंड इफ यू वांट टू शोज द मैचिंग लाइन एंड इट्स नंबर, आप मैचिंग लाइन भी देखना चाहते हैं और उसका नंबर क्या है आपकी लाइन का, तो आप -n का कीवर्ड यूज करेंगे। एंड इफ यू वांट टू सी मैच बोथ अपर केस और लोअर केस, आपका कंटेंट अपर केस के अंदर है तब भी डिस्प्ले हो जाए, और आपका कंटेंट अगर लोअर केस के साथ है तब भी वो डिस्प्ले हो जाए। आपको पता है कि आप का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो केस सेंसिटिव है, और अगर आप सर्च करेंगे लोअर केस की इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो जस्ट लोअर केस की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होगी। एंड इफ यू वांट टू सर्च अपर केस इंफॉर्मेशन, तो अपर केस के लेटर के अंदर अगर आपकी उस फाइल के अंदर कोई डाटा एग्जिस्ट करता हुआ तो वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप लोअर और अपर केस दोनों को एट अ टाइम व्यू करना चाहते हैं तो आप -v के सिंबल के साथ उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जी। वन अनदर कमांड दैट इज सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, दिस कमांड हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली आपकी कंटेंट्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके लिए सॉर्ट फाइल नेम आप लिखेंगे। आप क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, रिवर्स सॉर्टिंग करना चाहते हैं, आप न्यूमेरिकली सॉर्ट करना चाहते हैं, या केस इंसेंटिव सॉर्ट करना चाहते हैं। तो कौन सी सॉर्टिंग आप करना चाहते हैं उसका सिंबल आप यूज करेंगे। आपके पास -r है तो आपकी रिवर्स सॉर्टिंग होगी, -n यूज करते हैं सॉर्ट की कीवर्ड के साथ तो आपकी न्यूमेरिकली सॉर्टिंग हो जाएगी, और -f करते हैं तो आपका केस इंसेंटिव सॉर्टिंग का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। What is filter? Linux has a lot of filter commands like grep. A filter takes input from one command, does some processing and gives the output. आपकी फर्स्ट इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। When you pipe two commands, the filtered output of the first command is given to the next command. For example, you have following file with the name of sample। एक सैंपल फाइल का नेम है, और कैट के कमांड को यूज करते हुए हमने उसके कंटेंट्स को देखा। तो आपके पास कंटेंट्स हैं, बैट है, गॉट, एप्पल, डॉग, फर्स्ट, ईट एंड हाइट। अब करना क्या चाहते हैं, वी वांट टू हाईलाइट ओनली द लाइंस दैट डू नॉट कंटेन द कैरेक्टर ए, बट द रिजल्ट शुड बी इन रिवर्स ऑर्डर। आप इस सैंपल के जितने भी कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स में से वो वाली लाइंस देखना चाहते हैं, वो वाली इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं जहाँ पे ए लेटर जो है, ए कैरेक्टर जो है वो यूज नहीं हुआ। कौन सी कमांड यूज होगी, कैसे यूज होगी, और उसकी जो आउटपुट है वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होने चाहिए। तो हम इसको एग्जीक्यूट, इस कमांड को, फॉर दिस द फॉलोइंग सिंटैक्स कैन बी यूज। कैट नेम ऑफ फाइल मीन्स सैंपल, हम सैंपल के कंटेंट्स को व्यू करना चाहते हैं। क्या वो व्यू करना चाहते हैं, हम grep की कीवर्ड को यूज करेंगे। अब grep की कमांड यहाँ पे क्या करेगी, आपके इंफॉर्मेशन को सर्च करेगी, फाइंड करेगी। सर्च क्या करना है, ए, ए को सर्च करना है, और फिर ए को माइनस कर देना है। ए वाले जिस कंटेंट्स के अंदर ए है वो लाइंस आपकी रिमूव हो जाएं आपकी आउटपुट में से, और जो आउटपुट होगी उसको आपने सॉर्ट करना है रिवर्स ऑर्डर में। तो -r का सिंबल हमने यूज किया। तो यहाँ पे आप देखें कैट सैंपल, grep का कीवर्ड, रिमूव और माइनस desired information, then pipe again and sort function in reverse order। यहाँ पे हम 3 डिफरेंट
कमांड्स को यूज कर रहे हैं और एट अ टाइम उनको एग्जीक्यूट करवाएं। कैट सैंपल आपके पास जितने भी कंटेंट्स हैं वो उसकी आउटपुट वो इनपुट बन जाएगी। ग्रेप का फंक्शन उस पर अप्लाई होगा, वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करेगा, उसमें से रिमूव कर देगा लाइंस, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइट, फर्स्ट, डॉग एंड एप्पल। आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है वो जहाँ जहाँ पे आपका कीवर्ड ए यूज हुआ था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और ये रिवर्स ऑर्डर में भी पहले आपका हाइट जो है वो एट द एंड था और एप्पल ऊपर था, अब हाइट ऊपर आ गया और आप एप्पल नीचे आ गया, तो रिवर्स ऑर्डर में उसने डिस्प्ले कर दिया। तो आज का लेक्चर जो है उसकी समरी क्या है? पाइप सेंड द आउटपुट ऑफ अ वन कमांड एंड एज अ इनपुट ऑफ another command. The filter takes input from one command, does some processing and gives the output. The grep command can be used to find a string and values in a text document. किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप स्पेसिफिक वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, उसको सर्च करना चाहते हैं, तो यू कैन सर्च specific information by using a grep command. And if you want to sort out that desired contents, then you have to use a command sort. By using sort command, sort out the contents of file alphabetically. So this is all for today's lecture. See you in next class. Take care. Allah Hafiz.